अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर जा रहे हैं प्लांट किंगडम। तो इस प्लांट किंगडम में हम जो प्लांट्स पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे, लाइक ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, थैलोफाइटा है। तो उससे पहले हम किंगडम प्लांटी के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो किंगडम प्लांटी में करेक्टरिस्टिक्स, विल स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो हम उन प्लांट्स का, उन ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर स्टडी करेंगे, फीचर स्टडी करेंगे, जिन प्लांट्स को हम, जिन ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। सो लेट्स स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो let we first study that kingdom Plantae includes the all multicellular। तो first is kingdom Plantae में जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, all are multicellular। this is the first feature, that all the plants are, all the organisms or the plants that we will study under the kingdom Plantae, they are multicellular, means that they are made up of more than one cell. And second feature is that they are eukaryotic, means eukaryotic, they have a true nucleus, they have well developed cell organelles, their nucleus or genetic material that is surrounded by the nuclear membrane. And third is all that of the plants, they are autotrophs, means they have an ability that they can trap the solar energy and convert that solar energy into the chemical energy. And I mean to say that they maintain the process of photosynthesis. They maintain the process of photosynthesis. That's why we just call as they are autotrophic. They have an ability that they can prepare their own food, and they can use the chlorophyll, means that not only the chlorophyll but the different photosynthetic pigments that are utilized by these living organisms, so can prepare their own food. Okay, they are multicellular eukaryotes, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, have a chlorophyll to prepare their own food. They have chlorophyll that they can synthesize their own food, and by the process of photosynthesis, so they carry out the photoautotropic nutrition, or we just all call them, they are photoautotrophs, means they have an ability, they can use the solar energy and convert that solar energy into the chemical energy. This is first feature of the kingdom Plantae, that all are multicellular eukaryotes having chlorophyll to synthesize their own food. Next one. So next feature or next characteristics of the kingdom Plantae is that cells have a large central vacuole and a rigid cell wall and composed of cellulose. So we can say that the plant cell, or we can say that plant cells we can say that there is a plant cell. The plant cell is having the cell wall. This is the additional covering that's to be called as cell wall. They have an additional covering called the cell wall. Okay, they have the cell wall, and in spite of the cell wall, uh, they have a central large vacuole. सो इनके अंदर एक वैक्यूल आपको मिलेगा, लार्ज वैक्यूल, एंड रिजिड सेल वॉल, और आपको एक रिजिड सेल वॉल मिलेगा एक प्लांट सेल में. Okay, composed of that cell wall is composed of cellulose, that's composed of cellulose. So second feature is that the cells are having the large vacuole, and the additional covering, that is the cell wall. Okay, additional covering is there, cell wall, that's composed of, the cell wall is composed of the cellulose. Now coming to the third feature or third characteristics, let we study the third characteristics. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक. सो मतलब ये
कि ये फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दैट दे हैव एन एबिलिटी they can prepare their own food, and the process by which they can prepare their own food, it is to be called as photosynthesis. And the mode of nutrition autotropic means they have auto self-trop means synthesize and generate. They can utilize the energy of the sun and convert that sun energy into the chemical energy. And इनका reserve of food material जो है that is starch and fat. तो किंगडम प्लांटी में जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्लांट्स आपको मिलेंगे, वो अपना रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल स्टोर करेंगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन द फॉर्म ऑफ फैट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन द फॉर्म ऑफ फैट. ओके, तो हो गए ये भी फीचर. नाउ नेक्स्ट फीचर इज दैट दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल. तो मोस्टली नॉन मोबाइल और इन्हें नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं, नॉन मोबाइल भी कह सकते हैं. मीन्स दैट इनमें से वो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं विच आर आई मीन से दैट दे आर इनकर्ड बीइंग anchored to the substratum. They have roots in case of gymnosperm, angiosperm, pteridophyta, bryophyta, angiosperm, bryophyta. In case of pteridophyta, they have the roots. In case of they have the rhizoids. In case of bryophyta and pteridophyta, they have the roots. In case of gymnosperm and angiosperms, okay, so they can by these roots they are anchored that which kept them anchoring, I mean say that they kept the hold the plants together with the soil. So usually are not motile, means that they have not ability that they can move from one place to another place. Now going to the next characteristics of the kingdom Plantae, that these plants have indefinite, I mean say that plants are indefinite and organs are continuously added throughout the life. So the plants are indefinite. यहाँ पे कोई ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती है, ग्रोथ का कोई ग्रोइंग का कोई स्टेगनेंट कोई पॉइंट नहीं होता है कि अप टू सर्टेन लेंथ की प्लांट ग्रो करेगा. नो, दिस इज ग्रोथ इज इनडेफिनिट, मीन्स दैट ये ग्रो करते रहेंगे टिल द एज टिल दे रीच देयर क्लाइमैक्स. जब इनका क्लाइमैक्स आएगा, इनकी डेथ हो जाएगी, तब तक ये ग्रो करेंगे. और नए जो प्लांट्स होते हैं, नए ऑर्गन्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो प्लांट्स ब्रांचेस हो. So by these meristematic tissues, the new organs are continuously added throughout the life. So जितनी भी जब तक लाइफ है एक प्लांट की, तब तक नए टिश्यूज, नए प्लांट्स, नए ऑर्गन्स, नए प्लांट्स के नए ऑर्गन्स कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं. ठीक है. और लास्ट वन फीचर ऑफ दैट, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑन दे आर द प्रोड्यूसर्स इन द बायोस्फीयर. अगर हम फूड चेन की बात करेंगे तो फूड चेन में ये पहले नंबर पे आते हैं. तो प्लांट्स एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर, इसके बाद प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स. तो इनमें प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पहली रैंक पे आते हैं, तो दे एक्ट एज अ प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं. तो हम ये कहेंगे प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स of the food. Plants are the producers, they are the producers of the food in the biosphere. तो अगर बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर में प्लांट जो होते हैं they are producers because why? Because they have an ability that they can prepare their own food. और इन्हीं प्रोड्यूसर से फिर एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है from one trophic level to the next trophic level, and this transfer of energy from one trophic level to another trophic level, it maintains the different types of linkage with the different types of organisms, that is to be called as food chain. तो अगर हम फूड चेन की बात करेंगे, फूड चेन में जो पहले नंबर पे आते हैं वो प्रोड्यूसर हैं, दैट दे आर ऑल द प्लांट्स. ये थे फीचर्स किंगडम प्लांट्स के. तो फीचर्स को मैं फिर से रिपीट करूँगा. ये जो फीचर्स हैं इनके फिर से मैं रिपीट करूँगा एक बार कि दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, द सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल, the mode of nutrition is autotropic, and plants are mostly non-motile, growth is indefinite, and plants are producers in the biosphere. ये plants producers हैं biosphere में. Now next one,
तो इनका आप क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे आप, किंगडम प्लांटी को हम क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में। लेकिन क्लासिफिकेशन किस पे करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड और डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, क्या प्लांट बॉडी जो है इसके डिफरेंट और डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट्स हैं, रूट्स हैं, लीफ हैं, स्टेम हैं, फ्लावर्स निकल आते हैं, हाँ इसका जाइलम है, फ्लोएम है, प्राइमरी रूट्स हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स पे हम प्लांट्स को डिफरेंशिएट करेंगे। वेदर द प्लांट डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हाँ अगर प्लांट तो है, क्या इसके पास फूड ट्रांसपोर्ट करने के पास कोई स्पेशल टिश्यू है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल टिश्यू है, क्या इसके पास वाटर कंडक्ट करने के लिए वाटर कंडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट दिस वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इज देयर एनी स्पेशल टिश्यू दैट मेक्स दिस कैरेज ऑफ द वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इज इट लाइक दैट? इस पे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। एबिलिटी ऑफ प्लांट टू बियर सीड्स, हाँ क्या प्लांट एबल है, क्या प्लांट्स के पास सीड है कि नहीं है? अगर प्लांट के पास सीड है तो, अगर नहीं है तो, अगर प्लांट के पास, इफ द प्लांट यू मीन से दैट, क्या अभी मैंने बोला कि हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब अगर प्लांट्स के पास वेस्कुलर बंडल नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, तो हम उनको ब्रायोफाइटा कहेंगे। अगर जाइलम एंड फ्लोएम हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम है, उसके बाद भी हम उसको दो हिस्सों में और तकसीम करेंगे कि अब एक तो टेरिडोफाइटा है, अगर इसके पास सीड है और जाइलम एंड फ्लोएम है और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता तो टेरिडोफाइटा है। अगर जाइलम और फ्लोएम है लेकिन सीड्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उनको कहेंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये मैं आगे बता दूंगा इसकी क्लासिफिकेशन। वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड, अब अगर कोई प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है, क्या वो सीड जो होते हैं वेदर दे आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और नॉट, क्या वो सीड जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर हैं, फ्रूट्स के इनक्लोज्ड हैं, या नेकेड सीड्स हैं, ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं सीड्स, या इन द सीड्स आर इनवेलप्ड और इनकेस्ड बाय द फ्लैशी, यू नो दैट्स केस्ड बाय फ्लैशी पल्प। सो इफ इट्स लाइक दैट, उसके बुनियाद पे भी हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो प्लांट की क्लासिफिकेशंस रहेंगे, अब हम पहले अगर बात करेंगे प्लांट की क्लासिफिकेशन की, तो हम देखते हैं कि यूजुअली हम देखते हैं पहले प्लांट किंगडम प्लांटी, पहले हम एक प्लांट किंगडम प्लांटी को लेते हैं, फिर किंगडम प्लांटी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो हिस्सों में ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं प्लांट बॉडी, अगर प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो तो हम लेख कहते हैं कि अगर प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो, वेल डिफ्रेंशिएटेड मीन्स दैट अगर एक प्लांट के पास रूट ना हो, स्टेम ना हो और लीफ ना हो, तो अगर तुम एक प्लांट को रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे तो यू विल नॉट हैव अ पर्टिकुलर रूट, यू विल नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्टेम और पर्टिकुलर लीफ ऑफ द प्लांट, देन व्हाट यू कैन से दैट आप इन प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखते हो, उस कैटेगरी का नाम है थैलोफाइटा, दैट इज कॉल्ड थैलोफाइटा। मीन्स दैट अगर किंगडम प्लांटी में प्लांट्स जो है उनका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, उनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी मीन्स उनके पास आप यू कॉन्ट डिफरेंशिएट दैट दिस इज द रूट, दैट द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन द रूट, स्टेम एंड लीफ, ना प्लांट के पास आपको ट्रू रूट्स मिलेंगे, ना ट्रू स्टेम मिलेगा, ना आपको वेल डिफरेंशिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स मिलेंगे। तो आपको सिंपली आप ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक प्लांट लोगे तो उस प्लांट में आपको आपके वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं मिलेगी। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी मीन्स लाइक दैट यू हैव द रूट्स, यू हैव द स्टेम, यू हैव द लीव्स, ऐसे कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। देन यू क्लासिफाई ऑल दीज प्लांट्स अंडर वन कैटेगरी दैट इज कॉल्ड थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अगर अब दूसरी बात है, अगर आपको वो प्लांट्स मिलेंगे जिनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी हो, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी मीन्स दैट आपके पास प्लांट के पास एक रूट भी है, प्लांट के पास एक स्टेम भी है, प्लांट के पास एक लीफ भी है, सो you are able to differentiate between the root, stem and the leaf of the plant, then all these plants they are means that उनको हम कहते हैं, उन प्लांट्स को हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो फिर भी हम उनको एक अलग हिस्से में तकसीम, उनकी हम अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन सी क्लासिफिकेशन? चलो अगर एक प्लांट के पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, बट जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, वाटर को कैरी करने के लिए
जाइलम नहीं है, ओके, या फूड को कैरी करने के लिए फ्लोएम नहीं है। तो अगर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है तो उन प्लांट्स को हम कैटेगरी अंदर रखते हैं, दैट इज ब्रायोफाइटा, उनको हम ब्रायोफाइटा के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम है तो फिर यहाँ पे उनको फिर से अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन इन डिटेल और डिस्कस्ड मैं करूँगा अलग। सो वो क्लासिफिकेशन में अलग पढ़ाऊँगा कमिंग लेक्चर में, उसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो उसमें हम स्टार्ट भी करेंगे थैलोफाइटा, लाइक एज द एल्गा थैलोफाइटा में आते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।